हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं। अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक. It includes various aspects such as feeding, breeding, and disease control. As per 20th livestock census, total cattle population in the country is 192.49 million during 2019. In India, there are mainly two types of cattle breeds. Number one, milch breeds. Number two, drought breeds. Number one is milch breeds. The cow of this breed gives more milk, but the bull are not good for agricultural work and load vehicle. Milch breeds includes major breeds like Gir, Shahiwal, Sindhi, Devani, थारपाकर etc. ठीक है, मिल्च ब्रीड्स में कौन कौन सी ब्रीड्स आती हैं? गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, थारपाकर etc. The cow of milch breeds gives more milk, but the bull are not good for agricultural work and load vehicle. Milch breeds includes major breeds like Gir, Shahiwal, Sindhi, Devani, थारपाकर etc. Number two, drought breeds. Drought breeds क्या होती हैं? Drought breeds includes breeds like नागौरी, भालावी, हाल्लिकार और कांगियम, किल्लारी, पोवार सेरी etc. ड्रॉट ब्रीड्स क्या हैं? ड्रॉट ब्रीड्स इंक्लूड्स ब्रीड्स लाइक नागौरी, भालावी, हल्लीकार, कंगियाम, किल्लारी, पोवार सेरी etc. The country's best indigenous cow breed is found in Rajasthan. The country's best indigenous cow breed is found in Rajasthan. The cow breed found in Rajasthan are थारपारकर, राठी, काकारेंज, शाहीवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी and मेवाती. The cows breed found in Rajasthan are थारपारकर, राठी, काकरेंज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी and मेवाती. Sahiwal cow breed is mainly found in Sindh province of Pakistan. Its milking capacity is very high. ठीक है, Sahiwal cow breed is mainly found in Sindh province of Pakistan. Its milk capacity is quite high. There are many breeds of buffalo. It mainly includes मुर्रा और भादावरी और जाफराबड़ी, सुत्तारी और महाशना, नागपुरी, नीली और पंधारपुरी etc. There are many breeds of buffalo. It mainly includes मुर्रा और भादावरी और जाफराबाड़ी, सुत्तारी, महासना, नागपुरी, नीली, पंधारपुरी etc. In India, maximum sheep are found in Telangana. The best quality of sheep breed of the country are found in the valley of Kashmir, Kullu, Chamba and Kangra. In India, maximum sheep are found in Telangana. The best quality of sheep breed of the country are found in the valley of Kashmir, Kullu, Chamba and Kangra. Goat is known as the cow of poor. Milk, meat, leather and wool are obtained from the goats. In India, goats are the main source of meat, about 35%. The highest milk yielding breed of goat in India's Jamnapari. It is also considered as good for both milk and meat. It produces 2.5 to 3 kilogram milk every day. In India, the White Revolution was started in July 1970 with the launch of Operation Flood
Operation Flood First Plan. Dr. Varghese Kurian is known as the father of White Revolution in India. Next है White Revolution is related to milk production. In 2020, India ranked first in the world in milk production. America is at the second place after India in milk production. In India, Uttar Pradesh stands first in the production of milk among all the states. The Rajasthan stands at the second place after Uttar Pradesh. Madhya Pradesh at third place. लेकिन जो अभी करंट है उसमें क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया राजस्थान फर्स्ट प्लेस पर आ चुका है. ठीक है, ये क्या है, रीसेंट का ही अपडेट है. इन इंडिया मिल्क प्रोडक्शन इज़ 394 ग्राम पर पर्सन एवरी डे. ऑपरेशन फ्लड वॉज स्टार्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. Its first phase was from 1970 to 80. The second phase from 1981 to 85 and the third phase from 1985 to 1996. In the year 1970, Indian Dairy Corporation was established in Anand, Gujarat. In the year 1970, Indian Dairy Corporation was established in Anand, Gujarat. Its aim was to make Operation Flood successful. National Dairy Board was established in 1965. National Dairy Board was established in 1965. Dr. Varghese Kurian was the founder of the National Dairy Development Board and the Indian Dairy Corporation. National Dairy Research Institute is located in Karnal, Haryana. It was given the status of deemed university in 1989. Bihar has the highest animal density in India. In the context of total livestock in 2019, Uttar Pradesh was at the top and Rajasthan and Madhya Pradesh were placed at second and third place respectively. Whereas in the context of cattle stock, the top three states are West Bengal, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन है स्टॉक फार्मिंग क्या है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स. स्टॉक फार्मिंग इज ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स. स्टॉक फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग लाइव स्टॉक फार्म. Animal husbandry is the scientific management of animal livestock. Animal husbandry includes various aspects such as feeding, breeding and disease control of the animals. Thus option B is the correct answer. That is stock farming क्या है, stock farming is breeding of animals. Next question है question number 2. Largest density of the number of cattle in per 100 hectare gross कल्टिवेबल लैंड इज़ इन बिहार. ठीक है, ये 1994 का क्वेश्चन है. उस टाइम पे बिहार की डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी. स्टेट एंड डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ कैटल्स इन देयर ग्रॉस कल्टिवेबल लैंड इज़ गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर. सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है. इसमें सबसे ज़्यादा बिहार में ही है डेंसिटी 183 पर स्क्वायर किलोमीटर. फिर बिहार के बाद सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश 106 पर स्क्वायर किलोमीटर. फिर थर्ड नंबर पर है उत्तर प्रदेश 77 पर स्क्वायर किलोमीटर और हरियाणा है फोर्थ नंबर पर 25 पर स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था, लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ द नंबर ऑफ कैटल इन पर 100 हेक्टेयर ग्रॉस कल्टिवेबल लैंड इज इन, इसका आंसर था बिहार. ठीक है, states and density of number of cattle in their gross cultivable land is given in the following order. हरियाणा में 25 पर स्क्वायर किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 77 पर स्क्वायर किलोमीटर, मध्य प्रदेश 106 पर स्क्वायर किलोमीटर, बिहार 183 पर स्क्वायर किलोमीटर. तो बिहार में सबसे ज़्यादा है 183 पर स्क्वायर किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है about 1/3 of India's cattle population is found in the 3 states. These are, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है, व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2006 के आसपास, और तो इसमें क्या है, तब ऑप्शन बी वाज करेक्ट आंसर. According to the 20th livestock census, there are 192.49 million cattle in India.
टॉप 3 स्टेट्स विद कैटल प्रोडक्शन इन 2019 आर एज फॉलोज। तो अगर हम 2019 का लेटेस्ट डेटा देखें जो कि 20th लाइव स्टॉक सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल कैटल्स का नंबर है 192.49 मिलियन, ठीक है। और टॉप 3 स्टेट्स विद कैटल पॉपुलेशन इन 2019 आर एज फॉलोज। सबसे ज़्यादा कैटल है वेस्ट बंगाल में 19 मिलियन। उसके बाद सेकंड नंबर में कैटल्स हैं उत्तर प्रदेश में 18.8 मिलियन और थर्ड नंबर में कैटल्स हैं मध्य प्रदेश में 18.7 मिलियन। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में 19 मिलियन, देन उत्तर प्रदेश में 18.8 मिलियन एंड देन मध्य प्रदेश में 18.7 मिलियन जो कैटल्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन है 2019 ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया शेयर इन मीट एंड मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट्स इन द ईयर 2017 वॉज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया शेयर इन द मीट एंड मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट इज़ 2.5% in 2008 in world exports. India share in meat and meat preparation export is 2.5% in 2018 in world exports. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। ये क्या है, 2008 का डेटा है, ठीक है। 2008 में ये पूछा गया था। अगर हम करंट टाइम पे देखें, प्रेजेंट में टाइम में देखें, तो अकॉर्डिंग टू द 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 3 स्टेट्स हैव हाइस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश की, सेकेंड नंबर पे है राजस्थान और थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश, ठीक है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की। तो फर्स्ट नंबर पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे है राजस्थान और थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या पूछा है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। जबकि अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जो डेटा है 20th लाइव स्टॉक सेंसस का 2019 का, उसमें टॉप 3 स्टेट्स विद कैटल पॉपुलेशन में वेस्ट बंगाल में कितने कैटल्स हैं, 19 मिलियन, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में थे 18.8 मिलियन कैटल। उसके बाद थर्ड नंबर में मध्य प्रदेश में थे 18.7 मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा अब प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बफेलोज इन इंडिया आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश। तो स्टेटमेंट 2 में ये कहा गया है टॉप 3 बफेलोज ऑनर स्टेट इन 1000 नंबर आर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, 33 मिलियन बफेलोज हैं। उसके बाद राजस्थान में 13.7 मिलियन बफेलो हैं एंड देन गुजरात में 10.5 मिलियन बफेलोज हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बफेलो कहाँ है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बफेलोज इन इंडिया आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश। तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शीप इन इंडिया आर फाउंड इन राजस्थान। तीसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है। तो हम देखते हैं कि टॉप 3 शीप ऑनर स्टेट्स कौन कौन से हैं। टॉप 3 शीप ऑनर स्टेट्स हैं 2019 के अकॉर्डिंग तेलंगाना फर्स्ट नंबर पर है शीप ऑनर में, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शीप इन इंडिया आर फाउंड इन तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना में लार्जेस्ट शीप ऑनर स्टेट है तेलंगाना, दूसरे नंबर पे आता है शीप के ऑनरिंग में आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटका। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 4, उत्तर प्रदेश इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काउ मिल्क, ठीक है। तो ये बताया गया है, इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काउ मिल्क इन 2018-19। अगर 2018-19 में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क था, ठीक है। 2018-19 में उत्तर प्रदेश क्या था, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट मिल्क यील्डिंग गोट ब्रीड इन इंडिया इज़। इसका आंसर हो जाएगा जमुनापारी। द मोस्ट मिल्क यील्डिंग गोट ब्रीड इन इंडिया इज़ जमुनापारी गोट।
This breed is considered useful for milk as well as for meat. It gives up to 2.5 to 3 किलोग्राम ऑफ मिल्क पर डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर द थारपारकर स्पीसीज फाउंड। तो ये किसकी स्पीसीज़ है थारपारकर, ठीक है, ये क्या है, बॉर्डर रीजन्स ऑफ राजस्थान में ये पाई जाती है। ये क्या है, काऊ की ब्रीड है, ठीक है। बेस्ट काऊ ब्रीड्स इन इंडिया आर फाउंड इन राजस्थान। ब्रीड्स ऑफ काऊ जनरली फाउंड इन राजस्थान आर थारपारकर। थारपारकर कहाँ की स्पीसीज़ है, जो बॉर्डर रीजन ऑफ राजस्थान है वहाँ पर ये काऊ की जो थारपारकर स्पीसीज़ है वहाँ पर पाई जाती है। बेस्ट काऊ ब्रीड्स इन इंडिया आर फाउंड इन राजस्थान। ब्रीड्स ऑफ काऊ जनरली फाउंड इन राजस्थान आर थारपारकर, राठी, कांकरेज, शाहीवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी एंड मेवाती। ये सभी क्या हैं, ये ब्रीड्स ऑफ काऊ हैं जो कि राजस्थान में पाई जाती हैं। थारपारकर, राठी, कांकरेज, शाहीवाल, लाल सिंधी काऊ और गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी एंड मेवाती काऊ ब्रीड्स, ये क्या है, काऊ की ब्रीड्स हैं। अमंग दीज थारपारकर ब्रीड इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसलमेर, बाड़मेर एंड जोधपुर, ठीक है। अमंग दीज थारपारकर ब्रीड इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जैसलमेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज़ एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ per capita milk production. Jaisalmer district of Rajasthan is at the top in terms of per capita milk production. Apart from this, it is also found in Kutch area of Gujarat. Next question है question number 8. The cow breed known for high milk yield is, इसका आंसर हो जाएगा शाहीवाल। शाहीवाल breed of cow is mainly found in Sindh province of Pakistan. Its milk yielding capacity is very high. गंगोत्री is mainly found in उत्तर प्रदेश। गंगोत्री जो ब्रीड है काऊ की वो कहाँ पर पाई जाती है, मेनली इन उत्तर प्रदेश। एंड जो गंगोत्री ब्रीड है काऊ की उसका मिल्क क्या होता है, इट्स मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लो, बहुत कम होती है मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी गंगोत्री ब्रीड की। हरियाणा एंड थारपारकर आर मेनली यूज्ड फॉर डुअल पर्पस, फॉर एग्जांपल दैट इज़ एज ए कैरियर एंड मिल्क यील्डिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंडियाज प्लेस इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज़, इसका आंसर है फर्स्ट है, ठीक है। इंडिया इज़ रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन 2020। अमेरिका इज़ एट सेकेंड प्लेस। इन इंडिया उत्तर प्रदेश वॉज एट फर्स्ट एंड राजस्थान इज़ एट सेकेंड प्लेस ड्यूरिंग 2018-19, ठीक है। वाइल जो क्या है वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, वाइट रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मिल्क। In order to increase the milk production, Operation Flood was started in 1970 to 1980 फर्स्ट फेज़ में। Its second phase started in 1981 to 1985 and third phase was during 1985 to 1996. Indian Dairy Corporation was established at Anand, Gujarat in the year 1970. Indian Dairy Corporation was established at Anand, Gujarat in the year 1970. which was established to flourish Operation Flood, ठीक है। National Dairy Development Board was established in 1965, whose mentor was Dr. Varghese Kurian. National Dairy Development Board was established in 1965, whose mentor was Dr. Varghese Kurian. Next है क्वेश्चन नंबर 10, what is Operation Flood associated with, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। व्हाट इज़ ऑपरेशन फ्लड एसोसिएटेड विद, ऑपरेशन फ्लड इज़ एसोसिएटेड विद मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाइस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन 2011-12। 2011-12 में कौन से स्टेट्स में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन था, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्टेट्स गिवन इन द ऑप्शन एंड देयर मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2011-12 and 2011-12 and 2018-19 इज़ गिवन बिलो। स्टेट्स उनका मिल्क प्रोडक्शन 2011-12 में और
2018-19 यानी 2018-19 में इन 1000 टन्स। तो हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2011-12 में कितना मिल्क प्रोडक्शन था। उत्तर प्रदेश में 22,556 टन्स का मिल्क प्रोडक्शन था 2011-12 में, जो कि 2018-19 2018-19 में बढ़कर कितना हो गया 30,519। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान का मिल्क प्रोडक्शन 2011-12 में कितना था 13,512 टन्स। ठीक है, और ये 2018-19 में कितना हो गया 23,668 टन्स। नेक्स्ट है गुजरात में 2011-12 में मिल्क प्रोडक्शन कितना था 9,817 और 2018-19 में बढ़कर कितना हो गया 14,493। नेक्स्ट है पंजाब में 2011-12 में मिल्क प्रोडक्शन कितना था 9,551। 2018-19 में कितना हो गया बढ़कर 12,599। ठीक है, तो इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कौन से स्टेट्स में है 2018-19 में उत्तर प्रदेश में है 30,519 टन्स। ठीक है, 30,519 टन्स का मिल्क प्रोडक्शन हुआ है 2018-19 में, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान में, फिर गुजरात में और फिर पंजाब में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन वाइट रिवॉल्यूशन। तो वाइट रिवॉल्यूशन का फादर किसे जाना जाता है इंडिया में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वॉज द father of India's white revolution which helped India emerged as the largest milk producer in the world। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन was the father of India's white revolution which helped India emerged as the largest milk producer in the world। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वाइट रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, इसका आंसर हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन। वाइट रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद वाइट रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन इज एसोसिएटेड विद वाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट करनाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट करनाल। National Dairy Research Institute is located at Karnal, Haryana. The institute was awarded the status of deemed university in the year 1989. Next है question number 16, which of the following is not a breed of Rajasthan। ठीक है, इसमें से बताना है कि राजस्थान की ब्रीड कौन नहीं है। थारपारकर राजस्थान की ही ब्रीड है। राठी ये भी राजस्थान की ही काव ब्रीड है। हालीकर भी क्या है, ये भी राजस्थान की ही ब्रीड है। मेवाती भी राजस्थान की ही ब्रीड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव, मीन्स ये सभी ब्रीड्स जो दी गई हैं ये सभी राजस्थान की ही ब्रीड हैं। ठीक है, राजस्थान स्टेट हैज़ 3 नेटिव कैटल ब्रीड्स with Rathi, Tharparkar and Nagori having great deal of independence। हालीकर क्या है, हालीकर is a breed of cattle native to the state of Karnataka। मेवाती also as KC is a breed of हरियाणा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि जो थारपारकर और राठी और जो नागौरी है केवल ये तीनों ही क्या है राजस्थान की नेटिव ब्रीड्स हैं, जबकि जो हल्लीकार ब्रीड है ये कहाँ की है, ये स्टेट ऑफ कर्नाटका की कैटल की नेटिव कैटल है। ठीक है, नेटिव कैटल ब्रीड है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अभी मैंने गलत बोल दिया था कि जो मेवाती है, मेवाती कहाँ की है, मेवाती ब्रीड ऑफ हरियाणा की है। और हल्लीकार भी कहाँ की है, हल्लीकार कर्नाटका की है। बाकी जो ये 3 हैं, राजस्थान स्टेट हैज़ 3 नेटिव कैटल ब्रीड्स जिसमें आती है राठी, थारपारकर और नागौरी। ठीक है, राठी, थारपारकर और नागौरी ये तीनों राजस्थान स्टेट की नेटिव कैटल ब्रीड्स हैं। ठीक है, जबकि जो हल्लीकार है, हल्लीकार कहाँ की है, स्टेट ऑफ कर्नाटका की कैटल नेटिव कैटल ब्रीड है। ठीक है, हल्लीकार इज़ ए ब्रीड ऑफ कैटल नेटिव टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट है मेवाती को क्या कहा जाता है, केसी भी कहा जाता है।
और ये ब्रीड है हरियाणा की। मेवाती कहाँ की ब्रीड है? हरियाणा की। हल्लीकार कहाँ की ब्रीड है? कर्नाटका की। राठी और थारपारकर कहाँ की है? ये है राजस्थान की। नागौरी कहाँ की है? राजस्थान की। ठीक है। राजस्थान स्टेट हैज़ 3 नेटिव कैटल ब्रीड्स, Rathi, Tharparkar and Nagauri, having great deal of independence. Hallikar is a breed of cattle native to the state of Karnataka. Mewati also known as केसी is a breed of हरियाणा. मेवाती कहाँ की ब्रीड है? हरियाणा की ब्रीड है। ठीक है, जिसे कि केसी भी कहा जाता है। हल्लीकार कहाँ की ब्रीड है? कर्नाटका की ब्रीड है। और बाकी जो बची हुई 3 ब्रीड्स हैं, ऑप्शन में तो सिर्फ 2 हैं, जैसे कि राठी और थारपारकर, ये क्या है? राजस्थान की हैं। साथ ही नागौरी जो है ये भी कहाँ की नेटिव कैटल ब्रीड है? राजस्थान की। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए थे उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। ध्यान रखिएगा कि थारपारकर, राठी और नागौरी ये तीनों कैटल ब्रीड्स हैं राजस्थान की, जबकि जो हल्लीकार है ये है स्टेट ऑफ कर्नाटका की नेटिव ब्रीड, और मेवाती जिसे कि केसी भी कहा जाता है ये है हरियाणा की कैटल ब्रीड। ठीक है, तो अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।